Namaskar everyone. Now we will continue our new chapter, chapter number 11. Chapter 11 is that mensuration. Okay, so mensuration is generally depends on these formulas. On page number 195, just recall that perimeter of rectangle. What is the perimeter of rectangle? 2 into L plus B. 2 into L plus B. Okay. And diagonal of the rectangle. See on page number 195. This is the page number 195. Perimeter of the rectangle, area of the rectangle and diagonal of the rectangle. By using these formulas, we will find out the answer. Okay. Then area of rectangle, length into breadth, and diagonal of the rectangle, square root of L square plus B square. Okay. Diagonal is equal to square root of L square plus B square. Now, area and perimeter of square. Area of square, side into side. And perimeter is equal to 4 into side. And what about diagonal? Diagonal is equal to square root of S square plus S square. S square means side. Okay. Then, by using, if the area is given, then side of square, square root of A. Right? Area of triangle. Area of triangle is equal to half into base into height. Area of triangle, half into base into height. This is the formula. Base is equal to, see, area is equal to base into half into base into height. Base is equal to 2 into area divided by H. H is equal to 2 into area divided by base. Right? Area of parallelogram. Area of parallelogram is equal to base into height. Height is equal to area upon base and base is equal to area upon height. Then if two diagonals are given, diagonal D1, D2, then area of rhombus is equal to D1 into D2 divided by 2. These are the formulas as already given in your book. Okay, these are the most important formulae for using. This we will solve exercise 11.1. Right. Exercise 11.1. Question 1 is that find the area of the square whose each side measures 7 cm. Very simple question. Area of square is equal to side into side. Area of square is equal to side into side. Side into side. Okay. Then, what is the side given? 7. 7 into 7 is equal to 49. What is the unit? Centimeter. Then answer will be 49 centimeter square. Area of square is equal to side into side. Then 7 into 7, 49 centimeter square. Okay. Now, question number 2. Find the area of rectangular plot whose length is 24 meter and breadth is 15 meter. Area of rectangular plot means area of rectangle. Area of rectangular plot is equal to length into breadth. Length into breadth. Okay. What is the length given? What is the length? 24. And what is the breadth? 15. What is our answer? 15 4s are 60. 15 2s are 30 plus 6. 360 meter square. Okay, third one. Find the length of the diagonal of a square whose each side measures 11 centimeter. We will find out what diagonal of square. This is the square. 11 centimeter, 11 centimeter, 11 centimeter. And this is also 11 centimeter. Find out this. So, what is our formula for finding diagonal? Diagonal, already we have the formula. Side diagonal is equal to square root of side square plus side square. Diagonal of a square. Diagonal of a square is equal to square root of side square plus side square. Then what is the side? Side given in this question 11 centimeter. 11 square plus 11 square. Okay.
नाउ व्हाट इज द साइड? साइड इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर. देन diagonal of square is equal to 11 square plus 11 square. Okay. Now 11 square plus 11 square is equal to 121 plus 121. So square root of 121 into 2. Same answer. But what is the 121? जब भी हम यहाँ पर 121 plus 121 किए, अब 121 into 2 same 242. अब ये क्या है? 121 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 11 का. तो 121 स्क्वायर रूट के बाहर हो जाएगा, तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं 11. सी, अब यहाँ पर है 121, इसको स्क्वायर रूट से हम बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 11. ठीक है. जब भी ये स्क्वायर होता है तो इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? 11 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2. 2 कैंसल 11. ठीक है. अब यहाँ पर है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 121 इंटू 2, स्क्वायर रूट ऑफ 11 स्क्वायर इंटू 2. अब इसके मेथड लगाए तो 2 और 1/2 कैंसल, तो 11 बाहर आ गया. बट स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज, क्योंकि 2 का कोई होल स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर रूट में स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड वैल्यू है 1.41. ठीक है. तो 11 इंटू 1.41 is equal to 11 1 11, 4 is 44 plus 1 45 and 50. 15.51 सेंटीमीटर. 15.51 सेंटीमीटर. अब आपके पास में जो आंसर है वो बुक में 15.50 से कैसे इसको 3 डिजिट से मल्टीप्लाई किया, 1.414. आपके पास आंसर होगा 15.56. ठीक है. सो नो मैटर, आप सिंपल 1.41 से मल्टीप्लाई करें, आंसर है 15.51 सेंटीमीटर. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, द लेंथ ऑफ उस डायगोनल इज 72 सेंटीमीटर. आपको फाइंड आउट करना है एरिया. फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया. आपको गिवन है इसका डायगोनल. डायगोनल कितना दिया है? 72 सेंटीमीटर. 72 सेंटीमीटर. सो व्हाट इज द फॉर्मूला यूज्ड इन दिस क्वेश्चन? द एरिया इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, बट वी डोंट नो व्हाट इज द साइड. तो अब हम फाइंड आउट क्या करेंगे? फर्स्ट वी ड्रॉ द फिगर. ये डायगोनल गिवन है 72. आपको फाइंड आउट करना है साइड. ठीक है. तो आपके पास में क्वेश्चन है, तो इसमें आपका फॉर्मूला था साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया. ऑन पेज नंबर 196, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया. व्हाट इज द एरिया? एरिया नहीं पता है हमें, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एरिया हमें नहीं मालूम, तो हम फर्स्ट वी फाइंड आउट डायगोनल. डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, बट वी डोंट नो व्हाट इज द साइड. डायगोनल इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर. 72 सेंटीमीटर. एरिया इज इक्वल टू 1/2 डी स्क्वायर. क्या है फॉर्मूला इसका? एरिया इज इक्वल टू 1/2 डी स्क्वायर, डायगोनल स्क्वायर. ठीक है. तो हम फाइंड आउट करेंगे इस मेथड से 1/2 डायगोनल स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर is equal to 1/2 डायगोनल स्क्वायर. डायगोनल स्क्वायर. आपके पास में ये बुक में गिवन है एक फॉर्मूला. डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट. यहां से हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया. डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर. ठीक है. तो s स्क्वायर क्या है? साइड.
साइड स्क्वायर और ये भी है साइड स्क्वायर, तो ये हो गया 2 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीन्स 1/2 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो 2 स्क्वायर रूट इंटू साइड बाहर हो गया, तो आपके पास में ये क्या है, एरिया, ये हो गया आपका एरिया। तो एरिया यहाँ से फाइंड आउट है, एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पर चला गया इधर तो 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर। डायगोनल स्क्वायर क्यों, ये जो ये 2 है ये यहाँ पर 1/2 होता है तो यहाँ पर इसका हो गया स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हमने ये फाइंड आउट किया, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर। सो व्हाट इज द डायगोनल, 72 होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई दिस 1/2 इंटू 72 इंटू 72, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 6s are 36 into 72. What is our answer? Answer will be 2592 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले से हमने फाइंड आउट किए डायगोनल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, दिस इज 2s स्क्वायर, एस स्क्वायर मीन्स एरिया, ठीक है। तो एरिया साइड स्क्वायर है तो एरिया वो बाहर हो गया 2 स्क्वायर, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर, ये जो है ये 1/2 बाहर हो गया, तो फिर हम ये क्या करें, यहाँ पर स्क्वायर लग गया और 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर, ठीक है। सो आंसर विल बी 2592 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल है, एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू 1/2 डी स्क्वायर, डी स्क्वायर मीन्स diagonal square. Question number 5. The area of the square field is 1/2 hectares. 1/2 hectares. ठीक है. Find the length of its diagonal in meter. First we will change hectares into meter. So 1 hectare is equal to 10,000 meter square. ठीक है. 1 hectare is equal to 10,000 meter square. Then we first change this hectare into meter square. See, 1/2 means 3/2 into 10,000. 2 5s are 10, 3 zeros. What is the answer? 15,000 meter square. But our question is that find the length of its diagonal in meter. ओके, तो 1 हेक्टर इज इक्वल टू 15,000 मीटर स्क्वायर। देन साइड हमें नहीं पता तो हम साइड ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए आप, एक्स ले लीजिए। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स सेंटीमीटर, therefore area of square is equal to side into side. What is side? X into x, ठीक है, x into x. And what is area? Area is in meter square, 15,000, ठीक है। अब 15,000 is equal to x square, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे इसका x का, ठीक है। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ x। यहाँ तक के आपको बताना चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, 15,000 is equal to x into x, 15,000 is equal to x square. So area is equal to area diagonal of square. What is this? Area is equal to a square. A square का अब हम फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ a square, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 डी स्क्वायर। अभी हमने इसके पहले भी क्वेश्चन किया था, डी स्क्वायर मीन्स डायगोनल स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना है डायगोनल, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया। अब हमें स्क्वायर रूट हटाना है, तो यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो हम इधर में स्क्वायर रूट लगाते। सो डायगोनल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एरिया। So what is our area? 15,000. 2 into 15,000. ठीक है, तो ये आंसर हो गया 2 into 15,000, 30,000, राइट। अब 30,000 तो है, अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? सी
डबल जीरो है, ठीक है। 3 इंटू 100 इंटू 100, सिंपल फॉर्मूला है। 3 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, ठीक है। अब 10 स्क्वायर, जो ये 10 स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, तो आपका आंसर क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये 10 स्क्वायर बाहर हो गया 10 इंटू ये 10 स्क्वायर भी स्क्वायर रूट के बाहर हो गया, तो सिंपल 10। कैसे? हमने इसके पहले भी बताया, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है इसके 1/2, 2 कैंसर 10, ठीक है। 10 इंटू 10 100, स्क्वायर रूट ऑफ 3, व्हाट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 2? स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू है 1.73, तो आपको इससे 100 को मल्टीप्लाई करना है 1.73, आंसर है आपका 173, यूनिट है इसका 173 मीटर, ठीक है। तो डायगोनल कितना हो गया आपका? डायगोनल इज इक्वल टू 173 मीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है? डायगोनल। तो आपका आंसर क्या हो गया? 173 1732, आपके बुक में 173, तो 173.2 मीटर, आंसर है 173.2, ठीक है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू 173.2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स ऑफ 15 centimeter will be needed to cover a floor 5.85 meter by 6.90 meter? Okay, now we will continue these questions in next lecture. Okay, fine. So we will stop here and we'll do this exercise, continue this exercise in next lecture. Okay, thank you.